بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن حصہ اول پارٹ نمبر 13 پیج نمبر 140 آیات کی تفسیر میں قول فیصل۔ اس بارے میں کلی اتفاق کے باوجود کہ ابراہیم نے کبھی کواکب پرستی نہیں کی اور ان کی تمام زندگی شرک کی تلبیسات سے پاک ہے۔ سورہ انعام کی مستعار بالا آیات کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ان آیات کی تمہید میں جو کچھ لکھا گیا وہ ان اقوال میں سے ایک قول کے مطابق ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم کی یہ گفتگو قوم کی کواکب پرستی کی رد میں اس کو لاجواب کرنے کے لیے تھی، اس لیے کہ جب دو فریق کسی مسئلہ میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں تو احقاق حق کے لیے مناظرانہ دلائل میں سے دلیل کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں صرف نظریوں تھیوریز سے کام نہ لیا جائے، بلکہ مشاہدہ اور معائنہ کی ایسی راہ اختیار کی جائے کہ مخالف اس کے دعوے کے مقابلے میں لاجواب ہو جائے اور اس کی دلیل کے رد کرنے کی تمام راہیں اس کے سامنے بند ہو جائے۔ اب اگر اس میں سلامت روی باقی ہے اور اس کے قلب میں قبول حق کی گنجائش ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، ورنہ بے دلیل لڑنے اور جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تب اس طرح حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا ہے اور اصلی اور حقیقی بات نکھر کر صاف ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی تبلیغ کا مشن منطقی صغرا کبرا پر قائم نہ تھا، بلکہ حقیقت کو فطری دلائل کی سادگی کے ساتھ واضح کرنا ہی ان کا تغرائے امتیاز تھا۔ اس لیے انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا اور قوم پر واضح کر دیا کہ ستارے خواہ شمس و قمر ہی کیوں نہ ہو رب کہلانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ ربوبیت صرف اسی کو زیبا ہے جو رب العالمین، ارضی سماوی سفلی علوی کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور چونکہ قوم کے پاس اس بہترین دلیل کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ سچ ہوئی اور امر حق کو قبول کرنے کی بجائے جھگڑنے پر آمادہ ہو گئی، مگر اس کے ضمیر کو ماننا پڑا کہ یہ جو کچھ کہا گیا حق ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی صحیح جواب نہیں ہے۔ یہی حضرت ابراہیم کا مقصد تھا اور ان کے ادائے فرض کی حد یہیں تک تھی، کیونکہ دل چیر کر حق کو اس میں اتار دینا ان کی طاقت سے باہر تھا۔ اس تفسیر کے مطابق قرآن عزیز کی ان آیات میں نہ تعویل کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ مقدرات ماننے کی، نیز مشاہدہ کواکب سے متعلق آیات کا سیاق و سباق بھی بے تکلف اسی کی تائید کرتا ہے۔ مثلاً اس سلسلہ کی پہلی آیات 2 ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ انعام رکوع 9۔ جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا تو بناتا ہے بتوں کو خدا؟ میں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ان ہر دو آیات سے حسب ذیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ روایت کواکب کا یہ معاملہ ابراہیم کے ساتھ ایسے زمانے میں پیش آیا ہے جبکہ وہ اپنے والد اور قوم کے ساتھ تبلیغ حق کے مناظرے میں مصروف تھے، اس لیے کہ پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کو وَكَذَلِكَ کہہ کر شروع کرنا یہی معنی رکھتا ہے۔ پھر تیسری آیت کی شروع میں فلما کی فا یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ دوسری آیت سے وابستہ ہے، اور اس طرح ان تینوں آیات کا سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو جس طرح اصنام پرستی کے مقابلے میں روشن دلائل عطا فرمائے تھے تاکہ وہ آزر اور قوم کو لاجواب کر سکیں اور راہ ہدایت دکھائیں، اسی طرح کواکب پرستی کے مقابلے میں بھی اس نے حضرت ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا تاکہ وہ ان سب مخلوق کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں اور ان کو حق الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے، اور پھر وہ کواکب پرستی کے رد میں بھی بہترین دلائل دے سکیں اور اس سلسلہ میں بھی قوم کو حق کی راہ دکھلا کر ان کی غلط روش کے متعلق لاجواب بنا سکیں۔ یہ تو آیات رؤیت کا سباق تھا، اور اب سے قابل توجہ ہے جب حضرت ابراہیم نے آخر میں آفتاب پر نظر فرمائی اور پھر وہ بھی نظروں سے غائب ہونے لگا تو اسی آیت میں یہ جملہ موجود نظر آتا ہے، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ ابراہیم نے کہا، اے قوم میں شرک کرنے والوں سے بری ہوں۔ اور ساتھ ہی یہ آیت مذکور ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سورہ انعام رکوع 9۔ بلا شبہ میں نے اپنا رخ صرف اس خدا کی جانب پھیر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس حالت میں کہ میں حنیف اور مشرک نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ۔ اور ابراہیم کی قوم نے اسے جھگڑنا شروع کیا۔ ابراہیم نے کہا، کیا تو مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتی ہے
और सबसे आखिर आयत में कहा गया वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही नरफ़उ दरजातिम मन नशा इन्न रब्बका हकीमुन अलीम। ये हमारी दलील है जो हमने इब्राहीम को उसकी कौम के मुकाबले में अता की। हम जिसका दर्जा बुलंद करना चाहते हैं कर दिया करते हैं। बेशक तेरा रब दाना है जानने वाला। इन आयात से ये नताइज अखज़ होते हैं। एक, रुयत एक कवाकिब का ये मामला कौम से ज़रूर वाबस्ता था। तभी तीसरी मर्तबा में इब्राहीम ने अपनी ज़ात से खिताब करने के बजाय फ़ौरन कौम से खिताब शुरू कर दिया। दो, और कौम ने भी ये सब कुछ सुनकर दलील का जवाब दलील से देने की जगह इब्राहीम से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। तीन, अल्लाह ताला ने इब्राहीम की इस गुफ्तगू को कौम के मुकाबले में अपनी जानिब से हुज्जत करार दिया और बताया कि इब्राहीम का रुतबा रिसालत बहुत बुलंद और अरफा है, इसलिए कौम उनकी रहनुमाई की सख्त मोहताज है। और उन उमूर के सवा ये बात भी काबिल गौर है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम के मुतालिक ये भी इरशाद फरमाया, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल वकुन्ना बिही आलिमीन। अंबिया रकून 5। और बिलाशुबा हमने इब्राहीम को पहले ही से हिदायत अता कर दी थी और हम ही इसके वाकिफकार हैं। लिहाजा ये मामला हज़रत इब्राहीम के न लड़कपन का हो सकता है न उनके अपने अकीदा और ईमान का। इस तफसील से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी बयान करदा तफसीर ही आयात की सही तफसीर है। और बिलाशुबा इब्राहीम की जानिब से कौम पर यह ज़बरदस्त हुज्जत थी कि अफराद कौम का कवाकिब की परस्तिश करना, इनके लिए हैकल बनाना, अपने सिफली माबूदों के नाम उनके नाम पर रखना, गर्ज इनको माबूद रब और खुदा समझना कतन बातिल और गुमराही है, इसलिए कि ये सब एक ख़ास निज़ाम में जकड़े हुए और दिन और रात के तगय्युर के साथ तगय्युरात को कबूल करने वाले हैं। और इस पूरे निज़ाम की मालिक व खालिक सिर्फ वही हस्ती है जिसके यद कुदरत में इन सब की तस्खीर है और वो अल्लाह है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल क़मर वल्लैलु साबिकुन नहार। न सूरज की ये मजाल है कि वो कमर को पा सके और न रात में ये कुदरत है कि वो दिन को पीछे हटाकर उसकी जगह खुद जगह ले ले। गर्ज इन तमाम रोशन दलाइल व बराहीन के बाद भी जब कौम ने दावत इस्लाम को कबूल ना किया, असनाम परस्ती कवाकिब परस्ती में उसी तरह मुब्तला रही, तो हज़रत इब्राहीम ने एक दिन जमहूर के सामने ऐलान जंग कर दिया कि मैं तुम्हारे इन बुतों के मुतालिक एक ऐसी चाल चलूंगा जो तुमको सच करके ही छोड़ेगी। वतल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। अंबिया रकू 5। और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारी अदम मौजूदगी में ज़रूर तुम्हारे बुतों के साथ खुफिया चाल चलूंगा। इस मामले से मुतालिक असल सूरत हाल ये है कि जब इब्राहीम ने आज़र और कौम के जमहूर को हर तरह बुत परस्ती के मुआइब ज़ाहिर करके इसे बाज रखने की साई कर ली और हर किस्म के पंदो नसाहे के ज़रिए उनको ये बावर कराने में कुव्वत सर्फ कर दी कि ये बुत न नफ़ा पहुँचा सकते हैं न नुकसान, और ये कि तुम्हारे काहिनों और पेशवाओं ने इनके मुतालिक तुम्हारे दिलों में गलत खौफ बिठा दिया है कि अगर इनसे मुनकर हो जाओगे तो ये गज़बनाक होकर तुमको तबाह कर डालेंगे। ये तो अपनी आई हुई मुसीबत को भी नहीं टाल सकते। मगर आज़र और कौम के दिलों पर मुतलक असर ना हुआ। वो अपने देवताओं की खुदाई कुव्वत के अकीदा से किसी तरह बाज ना आए, बल्कि काहिनों और सरदारों ने इनको ज्यादा पुख्ता कर दिया और इब्राहीम की नसीहत पर कान धरने से सख्ती से रोक दिया। तब हजरत इब्राहीम ने सोचा कि अब मुझको रिश्ते हिदायत का ऐसा पहलू इख्तियार करना चाहिए जिससे जमहूर को ये मुशाहिदा हो जाए कि वाकई हमारे देवता सिर्फ लकड़ियों और पत्थरों की मूर्तियां हैं जो गूंगी भी हैं, बहरी भी हैं और अंधी भी, और दिलों में ये यकीन रासिख हो जाए कि अब तक इनके मुतालिक हमारे काहिनों और सरदारों ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल गलत और बेसरूपा बात थी और इब्राहीम ही की बात सच्ची है। अगर ऐसी कोई सूरत बन आई तो फिर मेरे लिए तबलीग हक के लिए आसान राह निकल आएगी। ये सोचकर उन्होंने एक निज़ाम अमल तैयार किया जिसको किसी पर ज़ाहिर नहीं होने दिया और इसकी इब्तदा इस तरह की कि बातों बातों में अपनी कौम के अफराद से ये कह गुजरे कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक खुफिया चाल चलूंगा। गोया इस तरह उनको मुतनब्बे करना था कि अगर तुम्हारे देवताओं में कुछ भी कुदरत है जैसा कि तुम दावा करते हो तो वो मेरी चाल को बातिल और मुझको मजबूर कर दे कि मैं ऐसा ना कर सकूं। मगर चूंकि बात साफ ना थी इसलिए कौम ने उस जानिब कुछ तवज्जो ना की कि हुस्न इत्तफाक के करीब ही ज़माना में कौम का एक मजहबी मेला पेश आया। जब सब उसके लिए चलने लगे तो कुछ लोगों ने इब्राहीम से भी इसरार किया कि वो भी साथ चले। हज़रत इब्राहीम ने अव्वल इनकार फरमाया और जब इस जानिब से इसरार बढ़ने लगा तो ये सितारों की जानिब निगाह उठाई और फरमाने लगे, इन्नी सकीम, मैं आज कुछ अलील सा हूँ। चूँकि इब्राहीम की कौम को कवाकिब परस्ती की वजह से नुजूम में कमाल भी और एतकाद भी था, इसलिए अपने अकीदा के लिहाज से वो ये समझे कि इब्राहीम किसी नाहस सितारा के असर बद में मुब्तला हैं और ये सोचकर बगैर किसी तशरीह हाल के इब्राहीम को छोड़कर मेला में चले गए। फनज़रा नज़रतन फिन नुजूम
फ़क़ाल इन्नी सक़ीम फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन। साफ़ात रकू 3। बस इब्राहिम ने एक निगाह उठाकर सितारों की जानिब देखा और कहने लगा, मैं कुछ अलीन हूँ। बस वो उसको छोड़कर चले गए। अब जबकि सारी कौम, बादशाह काहिन, मजहबी पेशवा मेले में मसरूफ़, शराब व कबाब में मशगूल थे, तो हज़रत इब्राहिम ने सोचा कि वक्त आ गया कि अपने निज़ाम अमल की तकमील करूँ और मुशाहिदा की सूरत में जमहूर पर वाज़े कर दूँ कि उनके देवताओं की हकीकत क्या है। वो उठे और सबसे बड़े देवता के हैकल मंदिर में पहुंचे। देखा तो वहां देवताओं के सामने किस्म किस्म के हलवों, फल, मेवों और मिठाइयों के चढ़ावे रखे हैं। इब्राहिम ने तंजिया लहजे में चुपके चुपके इन मूर्तियों से खिताब करके कहा, ये सब कुछ मौजूद है, इनको खाते क्यों नहीं? और फिर कहने लगे, मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात है कि तुम जवाब नहीं देते? और फिर उन सबको तोड़ फोड़ डाला और सबसे बड़े बुत के कांधे पर तबर रख कर वापस चले गए। फराग इला अहलिहिम फ़क़ाल ला तअकुलून मा लकुम ला तंतिकून फराग अलैहिम ज़रबन बिल यमीन। अंबिया बस चुपके से जा घुसा उनके बुतों में और कहने लगा, इब्राहिम उनके देवताओं से, क्यों नहीं खाते? तुमको क्या हो गया? क्यों नहीं बोलते? फिर अपने दाहिने हाथ से उन सबको तोड़ डाला। फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। अंबिया रकू 5। बस कर दिया उनको टुकड़े टुकड़े, मगर उनमें से बड़े देवता को छोड़ दिया ताकि अपने अकीदा के मुताबिक वो उसकी तरफ रुजू करें कि ये क्या हो गया। जब लोग मेले से वापस आए तो हैकल मंदिर में बुतों का ये हाल पाया। सख्त बरहम हुए और एक दूसरे से दरियाफ्त करने लगे कि ये क्या हुआ और किसने किया। इनमें वो भी थे जिनके सामने हजरत इब्राहिम तल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम तफसीर इब्न कसीर जिल्द 3 सूरह अंबिया कह चुके थे। उन्होंने फौरन कहा कि ये उस शख्स का काम है जिसका नाम इब्राहिम है, वही हमारे देवताओं का दुश्मन है। क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम। अंबिया वो कहने लगे, ये मामला हमारे खुदाओं के साथ किसने किया है? बिलाशुबा वो ज़रूर जालिम है। उनमें से बास कहने लगे, हमने एक जो उनकी ज़ुबान से उन बुतों का बुराई के साथ जिक्र सुना है उसको इब्राहिम कहा जाता है, यानी ये उसका काम है। काहिनों और सरदारों ने जब ये सुना तो गम गुस्सा से सुर्ख हो गए और कहने लगे, उसको मजमा के सामने पकड़ कर लाओ ताकि सब देखें कि मुजरिम कौन शख्स है। इब्राहिम सामने लाए गए तो बड़े रोबो दाब से उन्होंने पूछा, क्यों इब्राहिम, तूने हमारे देवताओं के साथ ये सब कुछ किया है? क़ालू फ़अतू बिही अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून क़ालू अअंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम। अंबिया उन्होंने कहा, इब्राहिम को लोगों के सामने लाओ ताकि वो देखें। वो कहने लगे, क्या इब्राहिम तूने हमारे देवताओं के साथ ये किया है? इब्राहिम ने देखा कि अब वो बेहतरीन मौका आ गया है जिसके लिए मैंने ये तदबीर इख्तियार की। मजमा मौजूद है, जमहूर देख रहे हैं कि इनके देवताओं का क्या हश्र हो गया, इसलिए अब काहिनों और मजहबी पेशवाओं को जमहूर की मौजूदगी में इनके बातिल अकीदा पर नातिम कर देने का वक्त है, ताकि अवाम को आंखों देखते मालूम हो जाए कि आज तक इन देवताओं के मुतालिक जो कुछ हमसे काहिनों और पुजारियों ने कहा था ये सब उनका मकरो फरेब था। मुझे इनसे कहना चाहिए था कि ये सब इस बड़े बुत की कार्रवाई है, इसे दरियाफ्त करो। ला महाला वो यही जवाब देंगे कि ये कहीं बुत भी बोलते और बात करते हैं तब मेरा मतलब हासिल है और फिर मैं इनके अकीदे का पोल जमहूर के सामने खोलकर सही अकीदा की तलकीन कर सकूंगा और बताऊंगा कि किस तरह वो बातिल और गुमराही में मुब्तला हैं। इस वक्त उन काहिनों और पुजारियों के पास निदामत के सवाए क्या होगा? इसलिए हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून। अंबिया इब्राहिम ने कहा, बल्कि इनमें से इस बड़े बुत ने ये किया है, बस अगर ये तुम्हारे देवता बोलते हो तो इनसे दरियाफ्त कर लो। इब्राहिम की इस यकीनी हुज्जत और दलील का काहिनों और पुजारियों के पास क्या जवाब हो सकता था? वो निदामत में गर्क थे, दिलों में जलील रुस्वा थे और सोचते थे कि क्या जवाब दें। जमहूर भी आज सब कुछ समझ गए थे और उन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देख लिया जिसके लिए वो तैयार ना थे। बिलाखिर छोटे और बड़े सभी को दिल में इकरार करना पड़ा कि इब्राहिम जालिम नहीं है बल्कि जालिम हम खुद हैं कि ऐसे बेदलील और बातिल अकीदा पर यकीन रखते हैं। तब निहायत शर्मसारी के साथ सरनगू होकर कहने लगे, इब्राहिम तो खूब जानता है कि इन देवताओं में बोलने की सकत नहीं है, ये तो बेजान मूर्तियां हैं। फरजाऊ इला अनफुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़्ज़ालिमून सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिकून। अंबिया रकू 5। बस उन्होंने अपने जी में सोचा, फिर कहने लगे, बेशक तुम ही जालिम हो। बाद अज़ां अपने सरों को नीचे झुकाकर कहने लगे, इब्राहिम तो खूब जानता है कि ये बोलने वाले नहीं हैं। इस तरह हजरत इब्राहिम की हुज्जत दलील कामयाब हुई और दुश्मनों ने एतराफ़ कर लिया कि जालिम हम खुद हैं और उनको जमहूर के सामने जुबान से इकरार करना पड़ा कि हमारे ये देवता जवाब देने और बोलने की ताकत नहीं रखते, जाए के नफ़ा और नुकसान के मालिक हैं।
تو अब इब्राहिम ने मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में उनको नसीहत भी की और कलामत भी, और बताया कि जब ये देवता न नफ़ा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, तो फिर ये खुदा और माबूद कैसे हो सकते हैं। अफसोस तुम इतना भी नहीं समझते या अकल से काम नहीं लेते। फरमाने लगे, अफताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शैयन वला यज़ुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि अफला ताक़िलून। अंबिया रकू 5। क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इन चीज़ों की पूजा करते हो जो तुमको ना कुछ नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। तुम पर अफसोस, और तुम्हारे इन माबूदान बातिल पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून क़ाल अतअबुदून मा तनहितून वल्लाहु ख़लक़कुम वमा तअमलून। साफ़ात रकू 3। बस वो सब हल्ला करके इब्राहिम के गिर्द जमा हो गए। इब्राहिम ने कहा, क्या जिन बुतों को हाथ से घड़ते हो उन्हीं को फिर पूछते हो, और असल ये है कि अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया और उनको भी जिन कामों को तुम करते हो। हज़रत इब्राहिम की इस नसीहत और मौइज़त का असर ये होना चाहिए था कि तमाम कौम अपने बातिल अकीदा से ताइब होकर मिल्लत हनीफ़ को इख्तियार कर लेती और कजरवी छोड़कर राह मुस्तकीम पर गामजन हो जाती। लेकिन दिलों की कुजी, नुफूस की सरकशी, मुतमर्रिदाना ज़हनियत और बातिनी खबासत तनायत ने इस जानिब ना आने दिया, और इसके बरक्स उन सब ने इब्राहिम की अदावत और दुश्मनी का नारा बुलंद कर दिया और एक दूसरे से कहने लगे कि अगर देवताओं की खुशनुदी चाहते हो तो इसको इस गुस्ताखी और मुजरिमाना हरकत पर सजा सख्त दो और दहकती हुई आग में जला डालो, ताकि इसकी तबलीग व दावत का किस्सा ही पाक हो जाए। बादशाह को दावत इस्लाम और उससे मुनाजरा। अभी ये मशवरे हो ही रहे थे कि शुदा बादशाह वक्त तक के बाद पहुंच गई। इस ज़माने में इराक के बादशाह का लक़ब नमरूद होता था, और ये रियाया के बाद सिर्फ बादशाह ही नहीं होते थे बल्कि खुद को इनका रब और मालिक जानते थे, और रियाया भी दूसरे देवताओं की तरह इसको अपना खुदा और माबूद मानती और इसकी भी इसी तरह परस्तिश करती थी जिस तरह देवताओं की, बल्कि इनसे भी ज़्यादा पासो अदब के साथ पेश आती थी, इसलिए कि वो साहिब अक्ल व शऊर भी होता था और मालिक के तख्तो ताज भी। नमरूद को जब ये मालूम हुआ तो आपे से बाहर हो गया और सोचने लगा कि इस शख्स की पैगम्बराना तबलीग व दावत की सरगर्मियाँ अगर इसी तरह जारी रहीं तो ये मेरी रबूबियत, मलूकियत और अलवहियत से भी सब रियाया को बरगश्ता कर देगा, और इस तरह बाप दादा के मज़हब के साथ साथ मेरी ये सल्तनत भी सवाल में आ जाएगी। इसलिए इस किस्से का इब्तदा ही में खात्मा कर देना बेहतर है। ये सोचकर उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को हमारे दरबार में हाजिर करो। इब्राहिम जब नमरूद के दरबार में पहुंचे तो नमरूद ने गुफ्तगू शुरू किया और इब्राहिम से दरियाफ्त किया कि तू बाप दादा के दीन की मुखालफत किस लिए करता है और मुझको रब मानने से तुझे क्यों इनकार है। इब्राहिम ने फरमाया कि मैं खुदाए वाहिद का परिस्तार हूँ, इसके अलावा किसी को इसका शरीक नहीं मानता। सारी कायनात और तमाम आलम इसी की मखलूक है, वही इन सब का खालिक व मालिक है। तू भी इसी तरह एक इंसान है जिस तरह हम सब इंसान हैं। फिर तू किस तरह रब या खुदा हो सकता है, और किस तरह ये गूंगे बहरे लकड़ी के बुत खुदा हो सकते हैं। मैं सही राह पर हूँ और तुम सब गलत राह पर, इसलिए मैं तबलीग के हक को किस तरह छोड़ सकता हूँ और तुम्हारे बाप दादा के खुद साख्ता दीन को कैसे इख्तियार कर सकता हूँ। नमरूद ने इब्राहिम से दरियाफ्त किया कि अगर मेरे अलावा तेरा कोई रब है तो इसका ऐसा वस्फ बयान कर कि जिसकी कुदरत मुझ में ना हो। तब इब्राहिम ने फरमाया, मेरा रब वो है जिसके कब्जा में मौत व हयात है, वही मौत देता है, वही जिंदगी बख्शता है। कज फहम नमरूद, मौत व हयात की हकीकत से नाशना। नमरूद कहने लगा, इस तरह मौत व हयात तो मेरे कब्जे में भी है। ये कहकर उसी वक्त एक बेकसूर शख्स के मुतालिक जल्लाद को हुक्म दिया कि उसकी गर्दन मार दो और मौत के घाट उतार दो। जल्लाद ने फौरन हुक्म की तामील कर दी और एक कत्ल के सजा याफ्ता मुजरिम को जेल से बुलाकर हुक्म दिया कि जाओ, हमने तुम्हारी जान बख्शी की। और फिर इब्राहिम की जानिब मुतवज्जे होकर कहने लगा, देखा मैं भी किस तरह जिंदगी बख्शता और मौत देता हूँ। फिर तेरे खुदा की खुसूसियत क्या रही। इब्राहिम समझ गए कि नमरूद या तो मौत हयात की असल हकीकत से नाशना है या जमहूर और रियाया को मुगालता देना चाहता है ताकि वो इस फर्क को ना समझ सके। जिंदगी बख्शना इसका नाम नहीं है, बल्कि नीस से हस्त करने का नाम जिंदगी बख्शना है। और इसी तरह किसी को कत्ल या फांसी से बचा लेना मौत का मालिक होना नहीं है। मौत का मालिक वही है जो रूह इंसानी को इसके जिस्म से निकाल कर अपने कब्जे में कर लेता है। इसलिए बहुत से दार रसीदा और शमशीर शीदा इंसान जिंदगी पा जाते हैं और बहुत से कत्लो दार से बचाए हुए इंसान लुकमे अजल बन जाते हैं। कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। अगर ऐसा हो सकता तो इब्राहिम से गुफ्तगू करने वाला नमरूद शरीर आराए सल्तनत ना होता, बल्कि इसके खानदान का पहला शख्स ही आज भी इस ताज तख्त का मालिक नजर आता। मगर नामालूम के इराक की सल्तनत के कितने मुद्दाई ज़ेरे दफन
ज़ेरे ज़मीन दफन हो चुके और अभी कितनों की बारी है। ताहम इब्राहिम ने सोचा कि अगर मैंने इस मौका पर मौत और हयात के दकीक फ़लसफ़ा पर बहस शुरू कर दी तो नमरूद का मकसद पूरा हो जाएगा और वो जमहूर को मुगालते में डालकर असल मामले को उलझा देगा और इस तरह मेरा नेक मकसद पूरा ना हो सकेगा और तबलीग हक़ के सिलसिला में सरे महफिल नमरूद को लाजवाब करने का मौका हाथ से जाता रहेगा, क्योंकि बहस व मुबाहसा जदलो मनाजरा मेरा असल मकसद नहीं है, बल्कि लोगों के दिमाग व कल्ब में खुदाए वाहिद का यकीन पैदा करना मेरा मकसद वहीद है। इसलिए उन्होंने इस दलील को नज़रअंदाज करके समझाने का एक दूसरा पैराया इख्तियार किया और ऐसी दलील पेश की जिसका सुबह शाम हर शख्स आंखों से मुशाहिदा करता और बगैर किसी मंतकी दलील के रोज़ो शब की ज़िंदगी में इससे दुचार होता रहता है। इब्राहिम ने फरमाया, मैं उस हस्ती को अल्लाह कहता हूँ जो रोज़ाना सूरज को मशरिक से लाता और मगरिब की जानिब ले जाता है। बस अगर तू भी इसी तरह खुदाई का दावा करता है तो इसके खिलाफ सूरज को मगरिब से निकाल और मशरिक में छुपा। ये सुनकर नमरूद मबहूत और लाजवाब होकर रह गया और इस तरह इब्राहिम की जुबान से नमरूद पर खुदा की हुज्जत पूरी हुई। नमरूद इस दलील से मबहूत क्यों हुआ और उसके पास इसके मुकाबले में मुखालता की गुंजाइश क्यों न रही? ये इसलिए कि इब्राहिम की दलील का हासिल ये था कि मैं एक ऐसी हस्ती को अल्लाह मानता हूँ जिसके मुतालिक मेरा ये अकीदा है कि ये सारी कायनात और उसका सारा निज़ाम उस ही ने बनाया और उसने इस पूरे निज़ाम को अपनी हिकमत के कानून से मुसख्खर कर दिया है कि उसकी कोई शय न वक्त मुकर्रर से पहले अपनी जगह से हट सकती है न इधर उधर हो सकती है। तुम इस पूरे निज़ाम में से आफताबी को देखो, आलम अर्ज़ी इससे किस कदर फ़ायदे हासिल करता है। बायहमा अल्लाह ताला ने इसके तुलू गुरूब का भी एक निज़ाम मुकर्रर कर दिया है। बस अगर आफ्ताब लाख बार भी चाहे कि वो इस निज़ाम से बाहर हो जाए तो वो इस पर कादिर नहीं, क्योंकि उसकी बाग खुदाए वाहिद के कब्ज़ाए कुदरत में है और उसको बेशक ये कुदरत है कि जो चाहे कर गुजरे, लेकिन वो करता वही है जो उसकी हिकमत का तकाजा है। लिहाजा अब नमरूद के लिए तीन ही सूरतें जवाब देने की हो सकती थी, या कि वो ये कहे कि मुझे आफ्ताब पर पूरी पूरी कुदरत हासिल है और मैंने ही ये सारा निज़ाम बनाया, मगर इसने यही जवाब इसलिए नहीं दिया कि वो खुद इसका कायल नहीं था कि ये सारी कायनात उसने बनाई है और आफ्ताब की हरकत उसके कब्ज़ा कुदरत में है, बल्कि वो तो खुद को अपनी रियाया का रब और देवता कहलाता था बस। दूसरी सूरत ये थी कि वो कहता, मैं इस आलम को किसी की मखलूक नहीं मानता और आफ्ताब तो खुद मुस्तकिल देवता है, इसके इख्तियारात में खुद बहुत कुछ है। मगर उसने यह भी इसलिए ना कहा कि अगर वो ऐसा कहता तो इब्राहिम का वही एतराज़ सामने आ जाता जो उन्होंने जमहूर के सामने आफ्ताब की रबूबियत के खिलाफ उठाया था कि अगर ये रब है तो आबदों और पुजारियों से ज़्यादा इस माबूद और देवता में तगय्युरात और फना के असरात क्यों मौजूद हैं? रब को फना और तगय्युर से क्या इलाका और क्या उसकी कुदरत में यह है कि अगर वो चाहे तो वक्त मुकर्रर से पहले या बाद में तुलू या गरूब हो जाए। तीसरी सूरत ये थी कि इब्राहिम की तहद्दी चैलेंज को कबूल कर लेता और मगरिब से निकाल कर दिखा देता, मगर चूंकि नमरूद इन तीनों सूरतों में से किसी सूरत में भी जवाब पर कादिर ना था, इसलिए मबहूत और लाजवाब होकर इसके सिवा दूसरा चारा बाकी ना रहा। ईसाई पादरियों और इनकी अंधी तकलीद में आर्या समाजियों ने इब्राहिम के जिक्र करता मनाजरा पर यह एतराज़ किया है कि अगर नमरूद ये कह बैठता कि इब्राहिम तो ही अपने खुदा से आफ्ताब को मगरिब से तुलू करते तो इब्राहिम के पास क्या जवाब था। यह एतराज़ बहुत ही लचर और सतही है, इसलिए कि हमने इब्राहिम के मनाजरा की जो तशरीह बयान की है और जो हकीकत वाक़या है उसके बाद ये सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि नमरूद जानता था कि वो ऐसा इसलिए नहीं कह सकता कि पहले वो खुद अपनी आजिज़ी और दरमानगी का इकरार करे और साथ ही ये भी तस्लीम करे कि आफ्ताब हमारा देवता भी नहीं है और ना इसमें ये कुदरत है कि वो हमारी इस इस्तिदा को इब्राहिम के मुकाबले में मंजूर कर ले। बदीन वजह इसने खामोशी को तरजीह दी और अगर वह ऐसा सवाल कर ही बैठता तो इब्राहिम को ये यकीन था कि ऐसे तहद्दी चैलेंज के वक्त अल्लाह ताला अपने सच्चे पैगंबर को जलील नहीं करेगा और इब्राहिम की दुआ पर वो बिलाशुबा आफ्ताब को मगरिब से तुलू करके इब्राहिम की सदाकत को वाज़े कर देगा। अलबत्ता ये मसला मादीन और खुदा की कुदरत पर कंट्रोल करने वालों के लिए ज़रूर ताजुब खैर हो सकता है, लेकिन जिनका अकीदा ये है कि कायनात का ये सारा निज़ाम अगरचे ख़ास कवानीन के शिकंजा में जकड़ा हुआ है, लेकिन इसका ये शिकंजा इन अशिया के ज़ाती खवास की बिना पर नहीं है, बल्कि इस शिकंजा में कसने वाली हस्ती है और है जो सबसे बालातर है और तमाम अशिया की तासीर और उसके ख़ास उसी के यद कुदरत में है। लिहाजा वो चाहे तो इनके ख़ास तो तासीरात को बदल भी सकता है और फना भी कर सकता है, और इसी कादर मुतलक और बेकैद मालिक और तसरुफ का नाम अल्लाह है। तो इसकी निगाह में ये ताज्जुब अंगेज़ बात नहीं है।
कुरान अजीज ने बकरा में इस वाक़या को मुख्तसर मगर लतीफ़ पैराया में बयान किया है। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन। बकरा रकू नंबर 35। क्या तूने नहीं देखा उस शख्स का वाक़या जिसको अल्लाह ने बादशाहत बख्शी थी, उसने किस तरह इब्राहीम से उसके परवरदिगार के बारे में मुनाजरा किया। जब कहा इब्राहीम ने मेरा परवरदिगार तो ज़िंदगी बख्शता है और मौत देता है। बादशाह ने कहा मैं भी ज़िंदगी बख्शता हूँ मौत देता हूँ। इब्राहीम ने कहा बिलाशुबा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, बस तो इसको मगरिब से निकाल कर दिखा। बस वो काफिर बादशाह मबहूत और लाजवाब होकर रह गया और अल्लाह जुल्म करने वालों को राहयाब नहीं करता। गर्ज हजरत इब्राहीम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र को इस्लाम की तलकीन की, पैगाम हक सुनाया और राह मुस्तकीम दिखाई। इसके बाद अवाम और जमहूर के सामने इस दावत को आम किया और सबको अमर हक तस्लीम कराने के लिए फितरत के बेहतरीन उसूल और दलाइल को पेश फरमाया और नरमी शीरीं कलामी मगर मजबूत और मुहकम रोशन हुज्जत और दलील के साथ इन पर हक को वाज़े किया और सबसे आखिर में बादशाह नमरूद से मुनाजरा किया और इस पर रोशन कर दिया कि रबूबियत और अलवहियत का हक सिर्फ खुदाए वाहिद ही के लिए सजावार है और बड़े से बड़े शहनशाह को भी ये हक नहीं है कि वो इसकी हमसरी का दावा करे, क्योंकि वो और कुल दुनिया इसी की मखलूक है और वजूद अदम की कैदोबंद में गिरफ्तार, मगर इसके बावजूद के बादशाह आज़र और जमहूर हजरत इब्राहीम के दलाइल से लाजवाब थे और दिलों में कायल, बल्कि बुतों के वाक़या में तो ज़ुबान से भी इकरार करना पड़ा कि इब्राहीम जो कुछ कहता है वही हक है और सही और दुरुस्त है। ताहम उनमें से किसी ने राह मुस्तकीम को इख्तियार ना किया और कबूल हक से मुनहरिफ ही रहे। और इतना ही नहीं बल्कि इसके बरक्स अपनी नदामत व ज़िल्लत से मुतासिर होकर बहुत ज़्यादा गैज़ व गज़ब में आ गए और बादशाह से रियायत तक सब ने मुत्तफ़िका फ़ैसला कर लिया कि देवताओं की तौहीन और बाप दादा के दीन की मुखालफत में इब्राहीम को दहकती आग में जला देना चाहिए, क्योंकि सख्त मुजरिम की सज़ा यही हो सकती है और देवताओं की तहकीर का इंतकाम इसी तरह लिया जा सकता है। आग का सर्द हो जाना। इस मरला पर पहुँच कर इब्राहीम की जद्दोजहद का मामला ख़त्म हो गया और अब दलाइल व बराहीन की कुव्वत के मुकाबला में मादी ताकत व सितवत ने मुजाहिरा शुरू कर दिया। बाप इसका दुश्मन, जमहूर इसके मुखालिफ, बादशाह वक्त इसके दरपे आज़ार, एक हस्ती और चहार जानब से मुखालफत की आवाज़, दुश्मनी के नारे, नफरत व हकारत के साथ सख्त इंतकाम, खौफनाक सज़ा के इरादे। ऐसे वक्त में उसकी मदद कौन करे और उसकी हिमायत का सामान किस तरह मुहैया हो। मगर इब्राहीम को न इसकी परवाह थी न इसका खौफ। वो इसी तरह बेखौफ खतर और मुलामत करने वालों की मुलामत से बेनियाज ऐलान हक में सरशार और दावत रुश्त व हिदायत में मशगूल थे। अलबत्ता ऐसे नाजुक वक्त में जब तमाम मादी सहारे ख़त्म, दुनियावी असबाब नापैद और हिमायत और नुसरत के ज़ाहिरी असबाब मफकूद हो चुके थे, इब्राहीम को उस वक्त भी एक ऐसा बड़ा ज़बरदस्त सहारा हासिल था जो तमाम सहारों का सहारा और तमाम नुसरतों का नासिर कहा जाता है। वो खुदाए वाहिद का सहारा था। उसने अपने जलीलुल कदर पैगंबर कौम के अजीमुल मर्तबत हादी और रहनुमा को बेयारो मददगार न रहने दिया, दुश्मनों के तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया। हुआ ये कि नमरूद और कौम ने इब्राहीम की सज़ा के लिए एक मखसूस जगह बनवाई। उसमें कई रोज़ मुसलसल आग दहकाई गई, हत्ता कि उसके शोलों से कुर्ब जवार की अशिया तक झुलसने लगी। जब इस तरह बादशाह और कौम को कामिल इत्मीनान हो गया कि अब इब्राहीम के इससे बच निकलने की कोई सूरत बाकी नहीं रही, तब एक गोफन में इब्राहीम को बिठाकर दहकती हुई आग में फेंक दिया गया। इस वक्त आग में जलाने की तासीर बख्शने वाले ने आग को हुक्म दिया कि वो इब्राहीम पर अपनी सोजिश का असर ना करे और नारी अनासिर का मजमुआ होते हुए भी उसके हक में सलामती के साथ सर्द पड़ जाए। आग उसी वक्त हजरत इब्राहीम के हक में बर्द व सलाम बन गई और दुश्मन उनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके और इब्राहीम दहकती आग से सालिम व महफूज दुश्मनों के नरगा से निकल गए। दुश्मन अगर कवी निगहबां कवी तरस्त, इस मकाम पर एक मजहबी इंसान की तमानियत कल्ब और सुकून खातिर के लिए ये काफ़ी है कि वो आग के बर्दो सलाम हो जाने को इसलिए सही और मबनी बर हकीकत समझे कि उसने अपनी अकल और अपने शऊर से अव्वल इस अमर का इम्तिहान कर लिया है कि कुरान अजीज़ की तालीम वही इलाही की तालीम है और उसके लाने वाली हस्ती की ज़िंदगी का हर पहलू पैगम्बराना मासूमियत के साथ वाबस्ता है। और ये कि वो जिन मौजज़ाना हक़ाइक़ की इत्तलाआत बहम पहुँचाता और वही इलाही के ज़रिए हमको सुनाता है, वो अकल के लिए अगरचे हैरान कुन है, लेकिन अकल की निगाह में मुहाल और नामुमकिन नहीं। इसलिए एक मुखबिर सादिक के जिसकी ज़िंदगी की सदाकत का हर पहलू से इम्तिहान करके इत्मीनान कर लिया गया है
کہ اس قسم کی خبریں بلا شبہ صحیح اور حق ہیں، اور بقول قیصر روم ہرقل اعظم ہرقلیوس کے جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا اور ان سے دغا و فریب نہیں کرتا، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کی جانب کسی غلط بات کو منسوب نہیں کر سکتا اور کبھی اس پر جھوٹ بولنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور مذہبی زندگی میں صاف اور سیدھی راہ بھی یہی ہے کہ جس مذہب کی مکمل تعلیم کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر ہر طرح قابل اطمینان بنا پا لیا جائے، اس کے بتائے ہوئے چند ایسے امور پر جو عقل کے لیے صرف حیران کن ہو مگر اس کے نزدیک محال، ذاتی اور ناممکن کے مرادف نہ ہو، فلسفیانہ مشگافیوں کے بغیر ایمان لے آیا جائے اور صاحب وحی کی اس یقینی اور غیر مشکوک اطلاع کو آفتاب کی روشنی سے زیادہ روشن سمجھا جائے اور یقین رکھا جائے کہ تمام اشیاء میں خواص و تاثیرات پیدا کرنے والے خدا میں یہ بھی قدرت ہے کہ جب چاہے ان کو دی ہوئی تاثیر اور خاصہ کو سلب کر لے اور جب چاہے دوسری کیفیت کے ساتھ بدل ڈالے۔ لیکن مادیین کے لیے اگر یہ راہ باعث اطمینان نہ ہو اور فلسفہ کے شیدائی مذہب کے اس مسئلہ کو بھی فلسفیانہ مشگافیوں سے پاک نہ رہنے دینا چاہتے ہوں تو ان کے لیے بھی اس معجزہ سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ آگ کا طبعی خاصہ جلا دینا اور جو شے بھی اس میں پڑے گی جل جائے گی، لیکن اس کی کیا وجہ کہ بعض وہ کپڑے اور وہ اشیاء جن کو فائر پروف کہا جاتا ہے آگ کے شعلوں کے اندر کیوں محفوظ رہتی ہیں اور ان کو آگ جلا کر کیوں خاکستر نہیں کر دیتی؟ تم کہو گے کہ آگ بدستور جلانے کا خاصہ رکھتی ہے، مگر کپڑے یا چیز پر ایک ایسا مثالہ لگا دیا جاتا ہے جس پر آگ اپنا اثر نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ آگ نے جلانے کا خاصہ ترک کر دیا ہے۔